Good morning, everyone. A very, very good morning. So, we'll be starting the session with our running, and the sharing and questions we'll be taking at the end. So, I would request all of y'all to please get ready for the running and stand up. I'll just play the music. I hope all of you are ready. This beautiful morning, we pray to our divine intelligence to make this an impactful session where our energies may lift each other up. As the day unfolds, transforms into a magical day for us and those around us. Thank you, thank you, thank you. I would now request Sakshi to explain us the chapter first in Hindi and then we'll do it in English. 1 second, Sakshi. Yes, yes. 2 minutes, yeah. Welcome, Okay. Aryan. Thank you, Auntie. So, hello, good morning, everyone. Thank you, Sakshi and Yashasvi, for explaining the chapter so beautifully yesterday, and thank you to both the readers for reading so nicely and calmly. So, today's chapter is very important, and I have come today because I really love that chapter. Yesterday's chapter is all about games. So, कल का चैप्टर इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपने तरफ कुछ आकर्षित कर भी लोगे लाइक इफ यू अट्रैक्ट समथिंग एंड इफ यू डोंट गेट टू नो कि आपको वो चाहिए लाइक इफ दैट्स द क्यू फॉर यू लाइक यू हैव टू डू दैट और दिस इज द टाइम इट हैज स्टार्टेड यू वोंट एवर बी एबल टू गेट इट कंप्लीटली लाइक जैसे कि आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर आस्किंग गॉड फॉर पेशेंस आपको क्या लगता है भगवान आपको पेशेंट इंसान बना देंगे कि आपको अपॉर्चुनिटी देंगे टू बिकम अ पेशेंट पर्सन like if you if you ask god like आपके family संग में रहे if they stay together will god keep them together or will they give you all the opportunity to love each other and क्या बोलते हैं संग में रहने का तो these are the cues or games that you have to find जैसे कि since my childhood whenever someone sees an ambulance like I've seen like people in my house when they see an ambulance they do this तो मुझे कभी reason नहीं पता था like I just got the habit of it. Like when they saw the ambulance, वो लोग ये करते थे. So even I started doing this. But when I am now reading the magic, जब मैंने ये magic book पढ़ने लगा, तब मैं समझा कि what does this mean? Like it is because I am being grateful कि सामने वाला का health भी अच्छा होए और मेरा भी health अच्छा है. This means. And जैसे कि मैंने temple का भी एक क्यू लेके रखा हुआ है. Like if I'm crossing a temple, it means I haven't been grateful to the universe. It's time for me to be grateful for universe. जैसे कि I've kept a cue for magic rock in my pocket. तो ऐसे ही कर करके जैसे कि if I see myself in a mirror या गलती से face camera on हो गया तो it's time for me to be grateful for myself. Like खुद के लिए grateful होना. ऐसे कर करके छोटा छोटा cues you can make throughout the day अपना game में. And it's not necessary आपका क्यू और मेरा क्यू सेम होगा आपको जो चीज को देख के फीलिंग आता है लाइक देर इज यूजुअली लाइक देर आर सर्टेन टाइम्स आई यूजुअली सी दोस टाइम्स लाइक अपने आप वो टाइम दिख जाता है जब मैं फोन खोलता हूँ लाइक एक ही टाइम बार बार नजर आता है तो दैट इज अ क्यू फॉर मी लाइक इफ one more cue I can tell you that I have is if I see 11:11 in the morning or if I see 11:11 at the night I am 110 मतलब मुझे पता होता है कि उस दिन मेरा डे मैजिकल होने ही वाला है लाइक it's actually going to be more magical. Every day is magical, but that day is going to be more magical. Then I've got certain t-shirts, like I don't choose that t-shirt for lucky day. Like if I touch that t-shirt that day, like if I've taken it out, मेरे को पता है आज दिन मेरा अच्छा जाने वाला है. Like those are the cues that we have to do. तो बस इतना ही and Sakshi, you may continue from here. Thank you everyone for listening to me. And now I have to take a leave. My exam is going to start in 1 minute. Thank you everyone for listening to me. All the best. Thank you, Auntie. Thank you, Aryan. All the best. So, आज हमारा है day 26 and this chapter is
one of the chapters which will genuinely help you to, you know, overcome your mistakes in life. And we all are humans and we are like meant to make mistakes. So today we learn how to, forget those mistakes and not constantly feel bad about them and then blame ourselves. So uh, I would request someone to please nominate his or herself to read. Sakshi Neelam. Neelam, may I? Yes, you can. So एक सेकेंड. हाँ ठीक है, यू मे बिगिन. आई थॉट द पेज इज इन देयर. 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले. ओपरा विनफ्री, जन 1954, मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी. तो अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले. यू हैव टू कन्वर्ट योर मिस्टेक्स इनटू विजडम. तो आप पूछेंगे इसका मतलब क्या हुआ. देखिए, वी ऑल मेक मिस्टेक्स एंड हम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग कैसे ये मिस्टेक बना लिए. अब ये मिस्टेक हो गया तो इसके बाद कुछ है ही नहीं. अब गलती हो गया तो बाबा रे इतना बड़ा काम हो गया, अब मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी. सो टुडेज चैप्टर इज़ सो ब्यूटीफुल. वो आपको इतनी अच्छी तरीके से देखिएगा, समझाएगी कि किस प्रकार आप अपने मिस्टेक्स को बुद्धिमत्ता में बदल सकते हैं. जैसे आप एक पिक्चर में देख रहे हैं ना, आसमान से लाइट गिर रहा है नीचे, और लाइट कहाँ जनरेट, जब भी बारिश होता है सबसे पहले वो कहाँ गिरता है, हम लोग पे कुछ भी गिरता है ऊपर से, सबसे पहले जनरली माथा पे गिरता है ना. माथा से हम लोग कुछ अपना बुद्धि को यूज़ करके हम लोग उसको कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं विजडम में. तो सिमिलरली वो जो लाइट गिर रहा है ना, ये आपके लाइट माथा पे गिर रहा है ताकि अपना मिस्टेक को आप विजडम में कन्वर्ट करें, अपनी जख्मों को बुद्धिमत्ता में कन्वर्ट करें. तो सबसे पहले आपको एकदम अलर्ट बैठना होगा आज. एंड यू हैव टू थिंक कि आपकी लाइफ में वो जख्मी क्या है, एंड उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं. सो प्लीज़ स्टार्ट थिंकिंग कि वो क्या एक ज़ख्म है जिसके बारे में सोच के आपको एकदम, आपका मन एकदम अच्छा नहीं रहता है एंड यू फील सुपर नेगेटिव. हो सकता है वो कोई छोटी सी मिस्टेक हो सकता है वो कोई बड़ी सी मिस्टेक हो. इट डजेंट मैटर. प्लीज़ कंटिन्यू. हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है. आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनेक वरदान छिपे रहते हैं. कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना है. No, actually someone muted herself. You may continue. कोई Continue. Sorry. बोले. Yes, you can continue. कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है. हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा. तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं. जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है. हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे. तो एक मिनट, सबसे पहला पैराग्राफ देखिए. वो हमें क्या बोलिए, गलती के भीतर दरअसल अनेक वरदान छिपे रहते हैं. सो मिस्टेक करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. बट हम लोग क्या करते हैं, व्हेन अ चाइल्ड मेक्स मिस्टेक, अगर बच्चा साइकिल से गिर गया या उसने कुछ तोड़ दिया या कुछ भी कर दिया, सपोज वो गिर गया या कुछ भी, उसको मना कर रहे हैं मत खेलो मत खेलो, बट वो कर दिया, उससे मिस्टेक हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, योर सर यू आर अ वेरी ब्रेव चाइल्ड, कुछ नहीं है, तुम तो सुपरमैन हो, तुम एकदम ठीक हो जाओगे. इमीडिएटली ये सब हम लोग के मुंह से निकलता है, क्योंकि हम लोग को उस बच्चा को क्या फील कराने कि ठीक है मिस्टेक हो गया, तुमने लर्न किया इससे. बट एज वी ग्रो अप, वो लॉजिक्स और रीजन की दुनिया में जब हम आते हैं, ऑल ऑफ अस, यू एंड मी, हम लोग सब क्या बोलते हैं कि how can I make this mistake, I'm so old, I'm like 18, I'm like 17, how can I make this mistake. मतलब हम लोग को लगता है कि हम लोग तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते हैं बचपन चाइल्डहुड के बाद. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप एक चीज़ सोचिए,
जो आप बड़े होके कर रहे हो आप बचपन में पहले नहीं किए। अगर आप कोई डील क्रैक कर रहे हो, डील में आपने मिस्टेक किया, या यू फेल इन लव विद समवन, आपने बचपन में उस इंसान से प्यार नहीं किया था, अगर आपने धोखा पाया या आपने डील क्रैक किया तब धोखा पाया, वो बचपन में नहीं हुआ था, यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। हर एक मिस्टेक का भी एक नया समय होता है। एवरी मिस्टेक इज़ अ न्यू मिस्टेक, प्लीज़ अंडरस्टैंड। एंड इट इज़ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने आप को ये नहीं बोले कि हाउ कैन आई मेक दिस मिस्टेक, बट आप ये समझे कि गलती के पीछे दरअसल गलती के भीतर दरअसल एक बहुत अच्छी वरदान छुपी है, बिकॉज यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड नॉट क्रेब रोना धोना कि अल्ले मैंने ये मिस्टेक क्यों कर दिया। उससे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। आपको सोल्यूशन चाहिए ना, तो अब उसके बारे में सोचिए, ना कि मिस्टेक पे फोकस करके रोते रहिए कि मिस्टेक हो गया, मैं ऐसे कैसे कर दी। जस्ट थिंक फॉर योर सेल्फ। प्लीज़ कंटिन्यू। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियां से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो उसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख ले। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है, ताकि हम उनसे सीख सके और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। एक मिनट। सो हम लोग जो लोग भी इकोनॉमिक्स पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े, ऑल ऑफ अस नो कि जीवन में हम लोग के पास इतने फैसिलिटीज़ और चॉइस है ना, कि बहुत चॉइस होने के कारण हम लोग सब ये बोलते हैं ज़्यादा चॉइस होता है तो ज़्यादा हम लोग को ऑप्शंस मिलता है, तो हम लोग इरिटेट होते हैं, अरे ये पहने कि नहीं पहने, और एंड में मुंह से क्या निकलता है, अरे कुछ है ही नहीं मेरे पास। जनरली यही होता है। व्हेन यू हैव मैनी चॉइसेस, लेखिका भी बोल रही है, आप मिस्टेक बनाते हैं, यू टेंड टू मेक मिस्टेक्स। बट आप एक चीज़ सोचिए, अगर आपके पास आपको काम करना है, किसी यहाँ पे जॉब करना है, दुनिया में कोई भी जॉब नहीं है, सिर्फ एक जॉब है, तो अगर आपको वही जॉब करना पड़ेगा, आपके पास तो कोई उपाय नहीं है, तो आप उस जॉब में चाहे कुछ भी हो, कितना भी गंदा हो, कितना भी अच्छा हो, आप करेंगे वो। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आप कितना भी नुक्स निकाल लें, यू हैव टू डू दिस। चाहे वो आप वहाँ पे मिस्टेक भी हो रहा हो आपसे, आपको खुशी मिल रही हो नहीं मिल रही हो, आप कुछ कर तो नहीं सकते। यू विल बी लाइक दिस इज द ओनली ऑप्शन, सो आई एम फाइन विथ इट, आई विल डू इट। सो दैट इज़ द होल पॉइंट। बट उसके बाद हम लोग ह्यूमन बींग्स को क्या चाहिए, हम लोग को चॉइसेस भी चाहिए। तो जहाँ चॉइस होगी वहाँ गलती होगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गलती करिए, मैं और आपको गलती करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक्सेप्टेंस। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ मैंने ये गलत काम किया है या मुझसे ये गलती हो गई, तब तक उस गलती करने के बाद का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप ऐसे एकदम गुस्सा होकर बैठ गए, नहीं नहीं तो मेरी गलती थी, नहीं तुम्हारी गलती थी, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। सो गलती भी दो जन ही करते हैं साथ में मिलकर, एक जन की वजह से कभी नहीं होती है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। सो एक्सेप्टेंस इज़ द बिगेस्ट वरदान। आप जब एक्सेप्ट करेंगे और समझेंगे, दैट विल ऑटोमेटिकली लीड यू टू एक्चुअली लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। सो यू नो, अभी मैं ये बोल रही हूँ, बात सही है, बहुत बार होता है व्हेन वी आर इन द आर्ग्यूमेंट, हीट ऑफ द सिचुएशन में, एकदम दिमाग जब गर्म होता है, यू एंड मी ऑल ऑफ अस आर रेडी, हम लोग उस समय झगड़ते रहेंगे क्योंकि हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है। बट माई ऑनेस्ट रिक्वेस्ट इज कि प्लीज़ जितना आप कर सकते हैं, इवन आई ट्राई, अपनी गलती को एक्सेप्ट करिए और उससे लर्न करिए और उसको भूल जाइए। फॉरगिव एंड फॉरगेट। प्लीज़ उसको पकड़ के मत बैठिए, क्योंकि वो आपको बैड फीलिंग जोन में लेके जाता है। यू फील इरिटेटेड, आपको गुस्सा आती है, एंड योर मोमेंट्स आर स्पॉइल्ड। क्योंकि किसी की खुशी आपके हाथ, आपकी खुशी किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ आपके हाथ में। प्लीज़ कंटिन्यू। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया।
हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इसी तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वाले को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई चेंज द पेज का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आप गलतियां निश्चित तौर पर होगी। यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है, लेकिन आपको अपनी गलतियां से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। 1 मिनट, तो वाह व्हाट अ लाइन। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। सो टुडे आप सीखेंगे कि किस प्रकार जो गलती आप कर चुके हैं, जिसको बारे में सोच के आपको बहुत गंदा फील होता है या आपको बहुत गुस्सा आता है, वो किस प्रकार आप उससे कैसे सीखेंगे। द ओनली ज़रिया इज़ कृतज्ञता। एंड बिफोर कृतज्ञता हम लोग अभी पढ़े हैं एक्सेप्टेंस। आपको मानना होगा सबसे पहले कि आपने वो गलती की है। अगर आप नहीं मानेंगे, आप कृतज्ञता दे भी दे, उसके ज़रिए आप नहीं पहुंच पाएंगे, आप नहीं सीख पाएंगे अपनी गलती से। प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर दिस। तो वो यहाँ पे क्या बोल रही है कि जब भी हम लोग रोड पे होते हैं तो बहुत सबके मुंह से निकलता है कि कोई पुलिस हम लोग को पकड़ लिया, अगर हम लोग 1 वे 2 वे का मिस्टेक कर दिए, 1 वे में 2 वे में हम लोग गाड़ी गलत जगह से डाल रहे हैं या 1 वे में गाड़ी डाल रहे, जो भी कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, रात को तो पुलिस जानबूझ के खड़ा होता है ताकि वो हम लोग को पकड़ ले। वो जानबूझ के यहाँ छुप गया था ताकि मैं अगर कुछ करूँ तो मुझे तो दिखे नहीं पुलिस है, मैं कर लूँ और वो आ जाए। ऑल ऑफ अस से दिस, बट वी डोंट अंडरस्टैंड दैट गलती हम कर रहे हैं। वी आर ब्रेकिंग द ट्रैफिक रूल्स। पुलिस का तो ड्यूटी है कि वो हमें आके बोले कि आप ये नहीं कर सकते हैं। एंड जब तक इंसान को सबक नहीं मिलता है ना, मेरे अनुसार, वो कभी भी वो गलती से वापस करने से बाज नहीं आता है, वो करते रहेगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट ना कि वो पुलिस हम लोग का चालान काटे, हम लोग को फाइन देना पड़े या हम लोग का लाइसेंस ले लिया जाए, बट ऑल ऑफ अस वी ह्यूमंस, हम लोग अपना गलती मानने के लिए रेडी नहीं होते। सो प्लीज इम्पॉर्टेंट, फाइंड योर मिस्टेक, एक्सेप्ट योर फॉल्ट एंड उसके बाद कृतज्ञता से उससे सीखिए। प्लीज कंटिन्यू। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञता होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती है। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियों को आकर्षित करती है और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुने जिसके बारे में सोचने से आपको अभी भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आप साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आप मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन
पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। एक मिनट, तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पे लेखिका क्या बोल रही है। कैसी भी गलती हो सकती है, कैसी भी, छोटी हो बड़ी हो, इट डजेंट मैटर। अगर एक छोटी सी गलती भी आपके मन को खराब करती है, आपको बहुत बुरा फील कराती है, आप आज तक उसको रिग्रेट करते हैं, चाहे वो आपने बचपन में किया हो, आपको याद है, बहुत साल पहले किया हो, कल किया हो, कुछ भी हो सकती है। कैसी भी गलती हो, आपको उसके बारे में सोचना है। एंड प्लीज रिमेंबर वन थिंग अगेन, आप ढंग से सोचिएगा इसको। ऐसी भी कोई छोटी मोटी गलती मत ले लीजिएगा। एंड लेखिका क्या बोल रही है, गलतियां अधिक गलतियां को आकर्षित करती है और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करती है। आप किससे अधिक पसंद करेंगे? आपके लाइफ का रिमोट, मैंने कल भी बोला, आपके हाथ में है। किस चैनल की तरफ जाना है आप सोच लीजिए। लाइफ का स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है। आपको गाड़ी को किस तरफ लेके जाना है आप सोच लीजिए, वरदान की तरफ कि गलतियों की तरफ। बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जो सोचेंगे वही आपके तरफ भागे भागे आएगा। प्लीज रिमेंबर दिस। प्लीज कंटिन्यू। एक मिनट, आप खुद। यहाँ से पढ़ना है। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदल जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर ले तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यह 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीज है जो गलती के फल स्वरूप सामने आई? हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वह होती है जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती है जो उसके फल स्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख ले या कंप्यूटर पर टाइप कर ले। तो आप देखिए आपको क्या करना है। फर्स्ट आप मिस्टेक खोज लिए, उसके बाद मैंने गलती से क्या सीखा। आप कैसे सीखेंगे वो अभी हम लोग ने समझा, कृतज्ञता। तो आप जब कृतज्ञता दे रहे हैं, मतलब आप जब वो लिख रहे हैं ना, अभी हम एक एग्जांपल देगी देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा फिर आपको कैसे करना है। तो जब आप लिख रहे होंगे ना, ऑटोमेटिकली आपका सेकंड क्वेश्चन आंसर होने लग जाएगा धीरे धीरे करके। वे कौन सी अच्छी चीज़ है जो गलती के फल स्वरूप सामने आई। तो बेसिकली वो गलती आपके लिए वरदान कैसी थी, उस गलती की वजह से आपको ऐसी क्या अच्छाई दिखी उस चीज़ में, या फिर उस इंसान में, या उस सिचुएशन में, कुछ भी हो सकता है। ऑटोमेटिकली आपको वो सामने दिख जाएगा, प्रोवाइडेड आप एक्चुअली मन से फीलिंग्स दे के कृतज्ञ होए। अगर किसी का सपोज यू मेड अ मिस्टेक, आप जो मिस्टेक बनाए, आपने किसी को अगर हर्ट किया है, तो आप एक्चुअल में सोचे कैसे क्या हुआ, मैंने क्या गलती की, और आपने कैसे आप कृतज्ञ हो सकते हैं। ये दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क, प्लीज़ रिमेंबर। बिकॉज बहुत लोग होते हैं जो अपनी मिस्टेक के बारे में सोच के बहुत दे जस्ट ब्रेक डाउन। तो आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, बट दिस इज़ द ज़रिया जो आपको अपने अपने सारे खराब सिचुएशंस, नेगेटिविटी से दूर भगाने का यही ज़रिया है अपने आप को। सो प्लीज़ सिट डाउन, गिव टाइम, शांति से एक जगह में बैठिएगा आज, एंड प्लीज़ थिंक अ लॉट बिफोर एक्चुअली सिटिंग डाउन एंड पेनिंग डाउन द ग्रैटिट्यूड एंड थिंकिंग कि उससे आपको क्या अच्छी चीज़ मिली अपने मिस्टेक से। सो अब हम पढ़ेंगे एक मिस्टेक जो लेखिका ने किया था एंड किस प्रकार वो कृतज्ञ होके उससे कुछ, उन्होंने उसमें कुछ अच्छाई देखी एंड उन्होंने कैसे क्या सीखा। प्लीज कंटिन्यू। आइए पुलिस कार द्वारा तेजी गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं जिससे मैं आप पर जुर्माना हुआ। नंबर 1, मैं पुलिस वाले के प्रति कृतज्ञ हूं कि वे मुझे अपनी आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसे ही करने की कोशिश कर रहे थे।
नंबर 2, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। नंबर 3, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था जिन्हें बदलने की जरूरत थी। नंबर 4, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ना जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। नंबर 6, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। नंबर 5, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। नंबर 8, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ, वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे। वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 5, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। नंबर 10, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। तो आप देखिए किस प्रकार लेखिका ने इस सिचुएशन के लिए 10 चीज़ ढूंढे। इसमें 10 से ज़्यादा चीज़ भी आपको मिल सकते हैं, बट 10 इज़ अ मिनिमम। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि आपको एक्चुअली क्या करना है अगर आप कुछ मिस्टेक किए। सो यू नो व्हेन आई डिड दिस फर्स्ट टाइम, जब मैंने ये अपनी मिस्टेक को ब्लेसिंग में कन्वर्ट किया था, आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम सोचने में कि मैं कैसे, मुझे मिस्टेक पता था but how do I convert it into a blessing? I genuinely took time, but at the end when I, जब मैं बैठने लिखी and at the end जब मुझे 10 मिला, I was astonished कि कैसे कैसे ये मिस्टेक से मुझे 10 अच्छी चीज़ मिल गई है और मैं कैसे सीख रही हूँ, you know. So whatever that mistake was, I actually felt so relieved and so good that day कि मैं आपको क्या बोलूँ। मतलब आप जब खुद करेंगे ना, यू विल अंडरस्टैंड, आप बोलेंगे ये भी हो सकता है, मतलब वाओ, आपको ऐसा लगेगा। सो यू नो, प्लीज प्लीज सिट डाउन एंड डू दिस फॉर श्योर टुडे। आपके लिए ना मतलब एक जन्नत टाइप की चीज होगी आफ्टर यू राइट द 10 थिंग्स। सो प्लीज कंटिन्यू। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की है, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकता है? साक्षी, यस, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। now सो you have to यस, सो अब हम अभ्यास पढ़ेंगे उसके पहले मैं वापस बोल रही हूँ, इट इज़ डिफ़िकल्ट बट प्लीज़ 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 इस सेशन के बाद ये अगर हो सकता है बैठ के करिएगा, बिकॉज फिर हम लोग बिजी हो जाते हैं पूरे दिन में एंड यू नो वी टेंड टू यू नो ओवरलुक ऑल दिस।
बट प्लीज़ उसको मतलब ऐसे छोड़ मत दीजिएगा, ज़रूर से करेगा. एंड वन मोर थिंग दैट आई डोंट नो हाउ टू टेल यू दिस, बट बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं. पता है, आप जब बैठेंगे ना, हो सकता है आपको 4 ऐसी चीज़ मिल जाए जिसको आपको ब्लेसिंग में कन्वर्ट करना है. It is quite possible. But today just take one, because this is not something easy. आपको मे बी लग रहा होगा देखने में easy, it is not easy. आप एक को लीजिए, पूरे मन से करिए, फीलिंग्स दे के करिए, एंड जब आपको डिफरेंट फील होगा ना, तब आप दूसरे को ट्राई करिएगा. बिकॉज अगर आप 4 मिस्टेक को साथ में लेके एक एक करके करेंगे ना, आई डोंट थिंक सो दैट रिजल्ट विल बी वॉट you are what the लेखिका is actually telling you, जो मैं या और मैं भी बोल रही हूँ कि you will feel amazing, वो रिजल्ट नहीं आएगा. So just take one mistake and आप उसको आज ठीक करने की कोशिश करिए. Please read the जादुई अभ्यास. जादुई अभ्यास क्रमांक 26, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले. नंबर 1, अपनी नियामतें गिने. 10 नियामतों की सूची बनाए. लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है. अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. इस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करे. नंबर 2, किसी एक गलती को चुने जो आपने अपने जीवन में की है. नंबर 3, उसी गलती के फल स्वरूप कुल 10 वरदान खोजे जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख ले. नंबर 4, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फल स्वरूप उत्पन्न हुई. नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपनी जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें. तो एक और चीज़ मुझे बोलना था कि प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को ब्लेम मत करिए अगर इफ़ यू मेक अ मिस्टेक, बिकॉज आई बिलीव एंड आई थिंक सो मोस्ट ऑफ अस हियर ऑन कॉल बिलीव दैट जब तक ह्यूमन बीइंग मिस्टेक नहीं करते ना, जैसे एक इंसान अगर पूरे समय फर्स्ट आते रह रहा है, फर्स्ट आते रह रहा है, फर्स्ट आते रह रहा है, तो अगर वो एक बार फेल नहीं हुआ या उसके बहुत कम मार्क्स नहीं आए ना, उसके माथा पे वो घमंड चढ़ जाएगा. एंड जब वो घमंड चढ़ता है ना, उसको नीचे उतारना इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. कोई कोई लोग के घमंड भी नहीं चढ़ता है, बट वो लोग अपने आप से इतना एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं ना कि एक बार भी थोड़े कम मार्क्स आ गए या बाय चांस गॉड फॉरबिड बट अगर फेल हो गए, मतलब वो इंसान की हालत खराब हो जाती है. वो इंसान इतने इतने इतना सैड हो जाता है कि इसकी कोई सीमा नहीं है. सो यू नीड टू रिमेंबर कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ सक्सेस एंड अचीवमेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ह्यूमन बीइंग लाइफ में एक बार फेल करे या मिस्टेक करे तो ही आप उससे सीख पाएंगे. एंड एटलीस्ट आप कॉशन हो जाएंगे, आप मिस्टेक बना लिए, आप सीख लिए, तो नेक्स्ट टाइम आप वो नहीं करेंगे. तो प्लीज लुक इट फ्रॉम दैट साइड रादर दैन क्रिबिंग अबाउट द फैक्ट कि अरे मैंने क्यों गलती की या गलती कैसे हो गई मेरे से, मैं इतनी बड़ी हूँ. सो थैंक यू नीलम जी फॉर रीडिंग द चैप्टर इन हिंदी. आई वुड नाउ रिक्वेस्ट यशस्वी टू प्लीज टेक ओवर. So thank you, Sakshi. Good morning, everyone. Good morning. And thank you, Sakshi, for explaining us so beautifully. And thank you, Neelam Auntie, for reading the chapter so nicely for all of us. So, as Sakshi has already explained you, today's chapter is about magically transforming your mistakes into blessings. I mean, amazing. So, can someone nominate themselves to read this chapter? If no one wants to read, then I'll read. Does anyone want to volunteer? Oh, yes, okay, I'll start reading. Okay. Date, Please. I'll start, yeah. Yeah. Day 26, magically transform mistakes into blessings. Turn your wounds into wisdom. Oprah Winfrey, 1954, media personality and businesswoman. Every single mistake is a blessing in disguise.
Today's magical practice will prove it because you're about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So, why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to a children also applies to you. We all make mistakes, and if we didn't make them, we'd never learn anything, and we wouldn't grow any smarter or any wiser. Yes, साक्षी 1 minute. So, whenever हम लोग कुछ भी करते हैं तो मम्मी और पापा हमेशा हम लोग को बोलते हैं ना कि बेटा गलती नहीं करोगे तो लाइफ में कभी भी नहीं सीखोगे. You will never grow up without, you cannot be perfect in everything. तो कहीं ना कहीं you will make mistakes in life. So तुम गलती करोगे तो सीखोगे कि हाँ, this is the right thing, this is what I have to do. तो मतलब हम लोग को तो बोल देते हैं. But when it comes to themselves and when you start growing after a certain point of time, you become so harsh on yourself. मतलब कि ये मैंने गलती कैसे कर लिया, मैं अपने आप को कैसे माफ कर पाऊंगी. So I mean, टर्न योर वूंड्स, अपने जख्मों को विजडम में टर्न कीजिए. सो एवरी सिंगल मिस्टेक इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. मतलब एक्चुअली इस चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि हर मिस्टेक से हम लोग कुछ सीख सकते हैं, एंड हर मिस्टेक में कैसे कुछ ग्रेटफुल होने के लिए भी छिपा हुआ रहता है. आज मैंने ये गलती किया तो हाउ एम आई ग्रेटफुल कि इस गलती ने मेरे लाइफ को कैसे चेंज कर दिया. व्हाट आर द रियलाइजेशंस दैट made me learn something from this. So let's read and let's understand. Actually, please continue. Yes. We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistakes we've made, the pain we've suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's, it's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. To learn from a mistake, we first have to own it, and this is where many people can become undone because they often blame someone else for their mistake. Yes. So, like here it's written, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again. तो आप देखते होंगे कि जब आप गुस्सा है एंड किसी और पे चिल्लाते हैं तो उस टाइम तो आप बोल देते हैं हाँ सॉरी सॉरी बिकॉज यू जस्ट रियलाइज यू फेल बैड. बट you'll see after some time you're again making that mistake. I mean, आप वो जितना बार वो मिस्टेक करते हैं ना आपको रियलाइज ही नहीं होता है. सो लाइक आई मीन जस्ट लाइक दैट एंड यू आर हर्टिंग समवन फॉर नो रीजन. मतलब आप अच्छे से भी तो बोल सकते हैं ना, बट उस टाइम हम लोग को नहीं रियलाइज होता है. बाय बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स लाइक दैट. सो प्लीज कंटिन्यू. Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket instead of taking responsibility for the fact that we were speeding. We blamed the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them. They had a gun, and so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. The problem with blaming other people for our mistake is that we still suffer the pain and consequences of our mistake, but we didn't learn from it. And so, bingo, we'll attract making the mistake again. यस. सो जैसे यू सी हमारे ड्राइवर्स भी जब चिल्लाते तो कितना चिल्लाने लग जाते हैं ना पुलिस वालों पे. जब उनको बोला जाता है कि ये उनकी मिस्टेक थी, दे ब्रोक द ट्रैफिक रूल, सो हाउ दे स्टार्ट शाउटिंग, समटाइम्स इवन योर फादर्स हाउ दे स्टार्ट शाउटिंग नहीं यार ये मेरी गलती नहीं थी, यू आर नॉट विजिलेंट. एंड ब्लेम करने में तो हम लोग को सिर्फ 2 मिनट लगता है, ये तो हमारी ह्यूमन नेचर है, दिस एवरीबडी नोज. But actually owning your mistake is the biggest thing in life. Very few people come forward and say हाँ यार ये मेरी गलती है, ये मेरे वजह से तुमको चोट पहुंचा, so I'm very very sorry. Because blame करने में क्या जाता है, but we don't realize when we are blaming, when we are making the mistake, first of all you're going in the feeling zone, bad feeling zone. So when you're going in the bad feeling zone, any which ways you are creating negativity. आप अपने ड्रीम से 10 स्टेप पीछे जा रहे हैं. एंड क्यों, मतलब
we actually don't learn from it, we just keep attracting it. मतलब एक बार कर लिए फिर लगता है ठीक है यार, एक बार कर लिए चिल्ला लिए क्या फर्क पड़ता है, नेक्स्ट टाइम भी वही कर लेंगे. So I mean it's not like that, because you will keep attracting it and you'll not even know how. So I'll give you an example. So when I was applying for my college, so my dream college in Sapphire College, I made this mistake that while applying it for the course, it was a BA course, I mean bachelor's in art, and we had to so there were a lot of options in the course where we had to select. So we had to select one thing and I thought that we had to select the other thing. So मतलब मेरे से mistake हो गया था instructions पढ़ने में. And ठीक है, मतलब सब कुछ हो गया. And the day the first list came out, मेरे को पता था कि मैं first list में हो जाएगा. But I didn't see my name. And then I contacted people from my college and the vice principal and all. And they told me you have applied for the wrong course. So when you apply for the wrong course, आपका नाम नहीं आ सकता. And the portal was going to shut. So, and I was just like, अब क्या होगा? मैं, I mean, so this was my mistake. And आप believe भी नहीं करेंगे कि, instead of actually feeling bad, मतलब उस टाइम तो मैं एक्चुअली बहुत रो रही थी कि ये मेरे से क्या हो गया, ये मेरी ड्रीम कॉलेज थी, हाउ कुड आई एक्चुअली बी सो ignorant about it, कि मैं कैसे इसको इग्नोर कर दी. But at that time, I was actually thinking what I can be grateful for in that mistake. क्यों? क्योंकि मैंने ये already कर चुका था ये chapter. So I was like, I'm actually grateful that this taught me that life में you should have patience. मेरे को थोड़ा कम patience. I start, getting hyper and all. So I mean, these are the things you actually start realizing when you start making mistakes. And my mom actually didn't blame me. So मेरी mom ने भी she's done magic, so she told me you can actually learn so much from your mistake. So I was not being harsh on myself. Please continue, Sakshi. You are a human, you will make mistakes, and it's one of the most beautiful things about being being human. Just a minute, Shasya, I think there's some disturbance. Yes. That is the most beautiful thing about being human. But you must learn from your mistakes, otherwise your life will have a lot of unnecessary pain. How do you learn from a mistake? Gratitude. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistakes into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attract more blessings. Which one would you prefer? Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or a small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper uh, maybe you lost your temper with a person close to you and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone and because of it you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something and it all went wrong and ended up costing you a whole lot of more. You might have thought you were making the right decision about something, but it is completely backfired on you. Once you've chosen a mistake to magically transform into blessings, look for things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? Yes, so 1 minute. So as it's written here, think about a mistake you have made in your life. तो मतलब mistake, we don't measure the mistake. Mistake ही होती है, चाहे जितनी भी बड़ी हो, चाहे जितनी भी छोटी हो. And मतलब आप सोच सकते हैं, I mean, before this chapter, I would never think that, I actually have to ask myself, what are the good things that came out of the mistake. मतलब हम लोग एक्चुअली ये कौन सोचता है. हम लोग तो बस चिल्ला देते हैं क्योंकि किसी की गलती होती है. And how and then how our relationship starts deteriorating if we attract more mistakes in our life. So we actually never think, मैंने actually mistake से क्या सोचा, मतलब ये भी perspective है life में, ऐसी भी perspective होती है. So I mean, it's so surprising what this chapter is trying to teach us. And ये क्यों हो रहा है? Because today we are in day 26 and our level of gratitude has increased so much. तो आज की जो chapter है, it's not an easy chapter,
बिकॉज यू एक्चुअली आपकी जो गलती आप लाइफ में उससे ब्लेसिंग निकालने की कोशिश करें. बट how you can find 10 things is just miraculous. So let's read the example. The most important thing to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has a magical power. Write out list Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. Number one, I'm grateful to the police for wanting to protect me from harming myself because, after all, that was all they were trying to do. Number two, I'm grateful to the police because if I am honest with myself, I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road. Number three, I'm grateful to the police because it was foolish to put myself at risk, speeding with a tire that needed to be replaced. Number four, I'm grateful to the police for the wake up call. Being pulled over did affect me and it will make me watch my speed and drive more carefully in future. I'm grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger. Number six, I'm grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop the speeding drivers. Number seven, I'm grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. Number eight, I'm grateful to the police that they must see heartbreaking situations every day and all they are trying to do is protect my life and my family's life. Number nine, I'm grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. Number 10, I'm grateful to the police because all of the possible consequences that could have stopped me from speeding the police pulling me over was the least harmful consequence and it could have been the biggest blessing of my life. I would strongly urge you to take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about and in your own time follow this magnificent and magical practice. Think about think about it through one mistake you have the power to bring many blessings. What else guarantees divides like that? What else guarantees dividends like Evidence like that. dividends like that? Yes, so can you imagine कि um, स्पीडिंग बाय पुलिस कार एंड रिसीविंग अ फाइन. सो जब आप ये करते हैं तो ये आपकी गलती होती है. बट कैसे हम लोग बोलते हैं ना, मतलब इंडिया है यार, छूट जाएंगे, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, गलती तो सब पुलिस की होती है, हम तो सब एकदम स्मार्ट है. सो आप सोच सकते हैं, मतलब इस गलती से आपने 10 ब्लेसिंग्स फाइंड की. आई मीन me and you could never think about it, but how the author has put it so beautifully. I mean, she has put examples which you cannot even think of when you're in that situation. तो उसी तरह आज जब आप, सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज दैट यू विल टेक टाइम. आप ये मत सोचिएगा आप 5-10 मिनट में कर लेंगे. समटाइम्स लाइक आज साक्षी सेड, यू एक्चुअली ब्रेक डाउन बिकॉज आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है, आप किसी को खो दिए कोई मिस्टेक की वजह से. सो सिट इन अ प्लेस वे देयर इज कंप्लीट साइलेंस एंड डू इट एट अ टाइम जब आपकी फैमिली लाइक इतना अभी तो इतना शोर होता होगा, तो जब आपकी फैमिली लाइक कोई सो रहा है, सो लाइक complete peace. And so I would strongly urge you to take any mistake you have made in your life and आपको उसके बारे में गंदा लग रहा है. So when I did this task, so there was this mistake where I had actually hurt my friend because of something in life. And मुझे हमेशा गंदा लगता था अंदर अंदर, and obviously I would blame myself because it was my mistake. But when I did this task, I was like, oh my god, I could actually find 10 things. I mean, it मेरे को नहीं लगा कि मतलब when I started writing, I was like यार एक ही तो चीज है इसमें सीखने से. But there were 10 things and I could actually write more than 10 things. तो हो सकता है when you start writing, when you reach 5 or 6
blessings, you will start writing more. You're like, अरे हाँ, ये भी चीज से मैं grateful हो सकती हूँ, ये भी चीज से मैं grateful हो सकती हूँ. So कभी भी लाइफ में, ये तो सिर्फ आज के लिए, कभी भी आपने कोई मिस्टेक बनाया, instead of crying about it, feeling bad about it, just take your book and write the blessings for what you think you're grateful for in that situation. For example, अगर साक्षी ने मेरे पे चिल्ला दिया क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं करी थी, so what can I be grateful for in that I have a friend like Sakshi जो मुझे who keeps checking on me. I mean, इस दुनिया में कितने कम लोग होते हैं who actually care about you if you're studying or if you're doing something, but वो उसकी भी तो लाइफ में कितनी चीज है ना, but she still came forward and she was thinking about me कि मैं नहीं कर रही हूँ ये काम. So I mean, कमाल की दुनिया यार. I mean, यहाँ पे कितना कुछ है. So you can think so much. So why limit yourself? So Sakshi, can you please read the magic practice? Magic practice number 26. Magically transform mistakes into blessings. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for the blessing as you can. Number 2. Choose one mistake you've made in your life. Number 3. Find a total of 10 blessings you're grateful for as a result of making that mistake and write them down. Number 4, to help you find blessings, you can ask yourself questions. What did I learn from the mistake? And what are the good things that came out of the mistake? Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, so today you need to find one mistake. So please 2-3 mistake मत find कर लीजिएगा. आज के assignment बोले कि you only need to focus on one mistake. कल से अगर आपको लगता है कि आपने 2-3 mistakes की, so you can start working on that. But today you just have to choose one and you need to find total of 10 blessings, not less than that. हो सकता है आप उससे ज़्यादा भी ढूंढ लें when you start doing it. And you need to ask yourself, what did I learn? So अगर आपको लग रहा है कि आपने you are not grateful, आपको कुछ मिल नहीं रहा है to be grateful for in this, so keep asking yourself, what did I learn? What are the good things that came out? I know it's a little challenging, but it's not impossible. So all of us can do this today. And as the author is repeating itself again and again, magic rock and count your blessings, please continue this, because I mean, ये दोनों चीजें आपकी लाइफ बदल सकती है. I mean, it's a very powerful practice, and that is why she's repeating it in the past 25 days. So thank you, Sakshi, for reading the chapter so nicely for all of us. Thank you. Thank you for the opportunity. Thanks to both of you. यशस्वी, I missed something. मेरे को लग रहा है कि जैसे क्या बोला, मिस्टेक को one mistake. Yes. One mistake, auntie, one. हाँ, और फिर उसके बाद में उसको कैसे क्लियर करना है? So Like you you need have to, yes. हमें सोचना है अपनी मिस्टेक के बारे में. Yes, what did you learn from that mistake? तो आपको क्या लगता है कि you can be grateful for in that mistake. So अगर आपने किसी के पे चिल्ला दिया, तो आपको सोचने कि अब मैंने जब चिल्लाया तो what can I be grateful for in that situation? Okay, तो मिस्टेक को फिर करेक्ट करना है. To convert into the blessing. Yes, convert into blessings. हाँ, तो आपको better feel होगा अपने मिस्टेक के बारे में. नहीं तो हम लोग कैसे अपने आप को कोसते रहते हैं ना कि ये मैंने कर दिया, मुझे इतना गंदा लग रहा है. Yes, Thank you. Thank you, Sakshi. Thank you. So thank you firstly. And एक बात बोलूं, मतलब I don't know how, but the mistake Yashasvi and I made are very similar, very similar. Both of us hurt our respective friends, and like they are, मतलब whatever the mistake was, even we were finding it very difficult. But when you sit down and you actually put your mind into it, you will definitely be able to find 10 things you can be grateful for. कि how that mistake is a वरदान, basically that. So आप try करिएगा आज, I'm sure you'll be able to do it. So before we take any sharings and questions, let's do today's dance and Shukrana. So let's just do the dance first. So today's song is a lovely song, and it's something which actually talks about mistakes and its importance in life.
आपको कभी भी लाइफ में लगे आपने बहुत बड़ा मिस्टेक कर लिया, and instead of crying about it or feeling bad, you can actually listen to this music. तो मतलब गलती से मिस्टेक, I mean so ironical. तो ये गाना, I mean it's really really amazing. So ये तो ऐसे ही हम लोग ने मतलब we just thought about it कि but whenever you feel low, ये गाना बहुत अच्छा है so you can just listen to it कि एक बार कोई बोलेगा गलती से मिस्टेक में तो सेम ही चीज हुआ, गलती एंड मिस्टेक. इट्स बेसिकली to make us laugh and feel happy and not low that you made a mistake. हर लाइफ में हर एक एज होता है मिस्टेक करने का. there is no defined age कि at the age of 5 you can make mistakes and not at the age of 50. So first let's do a shukrana and then we do the sharing. So thank you God that I woke up early and fresh. Thank you God for the fresh air that I breathe. Thank you God for the water which keeps me hydrated. Thank you, God, for my parents who take care of me and love me unconditionally always. Thank you, God, for my friends who trust me, respect me, and entertain me always. Thank you to all the participants for coming here and believing in us. Thank you, God, for my family's good health, prosperity, and safety. Thank you, thank you, thank you. So now if you have any sharings, questions, you can do that. I have a sharing. Yes, Mansi. What happened was I read the Magic Dust chapter. I read it again yesterday. So I don't want to name the person, but there's a new one who's facing this financial crisis and she wants to pay over this debt. So yesterday I visualized for her and sprinkled magic dust. And I did all the visualization with the core of my heart. And yesterday only she did the sales of 1.25 lakhs. Yeah. So I mean I can't tell you मेरा belief इस चीज के ऊपर कितना ज्यादा बढ़ गया कल. मतलब I was like oh my god ऐसे भी हो सकता है. और सच्ची में मतलब हम जब हम विजुलाइज किया था I mean उस समय I really felt like it's almost happening. इतना फीलिंग आ गया था विजुलाइजेशन के एंड से. So I'm so happy for that person and I hope उनका पूरा डेट जल्दी से रिकवर हो जाए. Wow, what a sharing, Mansi. I mean, amazing. Thank you. Thank so you. much. So just imagine एक दिन में एक इंसान का कुछ घंटे में 1.2 lakhs का 25 जो भी lakhs का सेल हो रहा है. तो अगर उनके साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है. There's no doubt about it. Thank Yes. you for your sharing. Thank you. So I like to share one thing. So yesterday I'd gone out to eat dinner with my family. So with my sister and my brother. And I mean there was this lady who was alone and she was sitting मतलब एकदम कोने में and तो वो रो रही थी and she was very sad. So I mean she was all alone and so basically when I saw her and she was then leaving the restaurant. So मुझे लगा she's so sad. So my sister's also done a magic book. So I told her कि चलो यार let's sprinkle magic dust on her and just say that बहुत खुश हो वो. She was very sad that time and so these are the things which starts changing. मतलब आप सोच सकते हैं आप रेस्टोरेंट में बैठे ना अचानक से आपको याद आ रहे स्प्रिंकल कर देते हैं मैजिक डस्ट. So this comes with practice. हम लोग भी कोई प्रो नहीं हुए but we just start because we are in this motion. So we just start seeing all these. So basically you need to be aware कि मैजिक हर जगह आपके लाइफ में. तो कल भी मैंने 2-3 क्यूज देखा था. So I mean it's amazing how you can see so many cues and you can be grateful for it. तो मतलब जैसे मानसी जी ने जो मैजिक शेयर किया. So now like she can celebrate कि उनके लाइफ में मैजिक हुआ even if it's for someone else but उस I was literally dancing and celebrating. यशा हम बोल नहीं सकते ऐसा फीलिंग आते हैं एक अपने लिए कुछ हो और फिर किसी और के लिए आप करो और फिर उसको इतना वो मिले ना. There is nothing more like it. Yes, very true, very true. I want to add one more thing. पहले मतलब मैं ये आशनी मैम के सेशंस में सुननी थी और मेरे साथ ही हमेशा रहा ये वाले चैप्टर के एंड में. वो बोली थी एक बार आजकल लोगों को इतना प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं. Why does it happen that so many people don't really get pregnant?
it's because आजकल क्या बोलते हैं, कोई बड़े बोलते हैं कि दूधो ना फूटो पर, तो बोलते अरे करियर के लिए दुआ दीजिए, why you just giving it for like kids and that is only what you want from me? Trying to retaliate this way, and that is the reason why it's happening. So कोई भी blessing आए, even if you don't want it, you never know किसी को कब बाद में चाहिए होगा. I have a cousin यशस्वी, उनका 11 years हो चुका है after marriage and she doesn't have a child. Ask her the pain. Very true. So मतलब जो बड़े पहले था ना system of giving आशीर्वाद, it was essentially that chapter only. Very true. So you know, Ashwin ma'am always tells us कि मतलब अगर आपको कोई blessings देता है ना, आप उसको छीन लो. आप जानते भी नहीं हो blessings में क्या power होता है. You know, when people bless you, I mean, don't lose that opportunity, because बहुत कम लोग actually bless करते हैं हम लोग को. Like, you know, our close ones of course do it, but जैसे you know, Sakshi also, you know, sometimes tell me, you know, Yasha, bless you because you're like this. Even we tell them, तो मतलब कौन बोलता है आज की दुनिया में, there are so few friends who actually, you know, care so much about you. मतलब किसको पड़ा है? I mean, आज की जिंदगी में everybody is so busy. So I mean, these are the things which you actually have to be grateful for. So thank you, Mansi Di, for your sharing. Thank you so much. If anyone has any other sharing or questions, you can also do so. कल क्यू देखा. So you know, it's a very fun game seeing cues and you know start being grateful for it. So it's 8:17 right now. We'll be waiting till 8:19. आप कुछ भी question sharing कर सकते हैं. So I like to share one thing. So yesterday my sister and I were talking. So what happened? So my sister's best friend, she was like, you know, my sister is doing really well. So I mean, she is an influencer on Instagram. So मतलब तो क्या हुआ, उसकी friend, so my sister is, you know, she's actually seeing a lot of magics in her life. So you know, कभी कभी ना कैसे friends थोड़े से jealous हो जाते हैं, you know, when you start going on that path in life. So you know, she was telling me that, you know, one of her friend, you know, obviously she didn't say, but indirectly she knew that, you know, थोड़ी सी jealous हो रही थी. So you know, when she was talking, I told her that, you know, please wait, you know, this is a cue for me, because my friends are never jealous and we are never jealous of each other, be it what. She might be the president of a club, she might be getting an all-rounder, she might be a head girl, but we always tell them ki, you know, Nishtha or Sakshi or, you know, anyone, I mean, wow, you are here because of what you have done. So you know, it's a cue that I am so grateful that I have such beautiful friends who always appreciate me, be it anything, whatever I'm doing in life. So you know, how you start finding these things when you're vigilant, when you're aware. नहीं तो मेरे को क्या था, मैं तो उसके साथ, you know, I would start gossiping. हाँ यार, आजकल तो सब jealousy होते हैं, मतलब क्या है आज की दुनिया में, you know, everybody just thinks about themselves. So you know, these are the changes that starts occurring in you. Your perspective shifts. So thank Wow. you. Thank you for your sharing, Yashasvi. So I believe no one else has any questions or sharing. So thank you so much everyone for coming here. Hope you all have a magical day. See you all tomorrow. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you to both of you and Aryan Raj also for Thank explaining so beautifully. Thank you. Bye. And one last thing, sorry, if you are not being able to find 10 things, read this chapter all over again. If by chance you can't find the PDF, text any one of us, we'll send it to you. Please read it again and definitely do this practice. Thank you.